تو بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں حالیہ بارشوں کے بعد برساتی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ کراچی کو ہب سے ملانے والا پل برساتی ریلا بہا کر لے گیا ہے۔ ہب سے کوئٹہ جانے والی RCD شاہراہ پر بھی کئی مقامات پر پل بہہ گئے ہیں۔ ضلع لسبیلا میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے ان علاقوں میں رہائش پذیر افراد پھنس گئے ہیں۔ لوگ کل سے بھوکے ہیں، پینے کے لیے صاف پانی بھی اس وقت میسر نہیں ہے۔ لوگوں کے مویشی بھی بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ جو مویشی موجود ہیں انہیں منتقل کرنے کا کوئی بھی انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ ضلع لسبیلا میں انتظامیہ عوام کی مدد کے لیے کیا کام کر رہی ہے، سب سے پہلے جانیں گے۔ ہب کے نمائندے دیدار علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیدار، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ کن کن علاقوں میں کس کس نوعیت کا نقصان ہوا ہے؟ جی بالکل، ضلع لسبیلا کے جو علاقے ہیں، اتھل ہے، بیلا ہے، لاکڑا ہے اور ہب ہے، یہاں پر جو موسلادھار بارشیں ہوئی جس کے باعث اگر دیکھا جائے تو بیلا، اتھل اور لاکڑا کے جو دیہات تھے وہ مکمل طور پر صفائی ہستی سے مٹ گئے ہیں، جبکہ اب بھی اس وقت بھی وہاں پر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں۔ مال مویشی، ان کا کاروبار مال مویشی ہوتا ہے، جو کہ زیادہ تر مال مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں اور جو موجود ہیں ان کو منتقل کرنے کا بھی تاحال کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس وقت ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ لاکڑا کے بہت سے ایسے علاقے ہیں، اتھل کے ایسے علاقے ہیں، بیلا کے، جہاں پر اس وقت بھی لوگ 3 دن سے پھنسے ہوئے ہیں اور درختوں پہ پناہ لی ہوئی ہے، لیکن وہ ان تک اب تک امداد نہیں پہنچی ہے۔ ضلعی حکومت یا صوبائی حکومت کی جانب سے نہ ہی ان کے لیے کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر اگر بات کریں RCD شاہراہ کی تو RCD شاہراہ بھی مختلف مقامات سے جو ہے وہ بہہ گئی ہے اور جو مسافر ہیں۔ ٹھیک ہے دیدار، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ ڈائریکٹر PDM بلوچستان عطا اللہ مینگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عطا صاحب، آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کی اگر بالخصوص بات کر لی جائے تو برساتی ریلوں نے تو تباہی مچا کر رکھی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر بلوچستان کی کیا صورتحال ہے اور لسبیلا کے حوالے سے بھی اسپیشلی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، بلوچستان کے جو ضلع ہے لسبیلا اس وقت اس موسم میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے۔ جہاں تک صورتحال کا تو کوئٹہ، کراچی، آئی رے مختلف جگہوں پہ بند ہے۔ اس وقت آئی فلڈ گزر رہا ہے اور کنٹینیوس بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس وقت PDM بلوچستان کے تقریباً 6 مختلف ریسکیو ٹیمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پاکستان نیوی اور آرمی کے ساتھ وہی پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت PDM بلوچستان نے جو یہاں پہ کوئٹہ، لسبیلا ٹو کراچی کی طرف ریسکیو کر رہے ہیں اور اس نیوی ریسکیو کر رہے ہیں فرام کراچی ٹو کوئٹہ کتل کی طرف۔ تو اس وقت PDM بلوچستان نے آج دوپہر تک تقریباً 180 بندوں کو ریسکیو کیا، جو پچھلے 2 دنوں سے نہ کچھ کھائے تھے نہ کچھ پیے تھے، بلکہ وہاں نہ کشتی بھی چل سکتی تھی نہ ہیلی کاپٹر، کیونکہ ہیلی کاپٹر بھی گئے وہاں ریسکیو کے لیے تو اتنی شدید تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے وہ بھی واپس آ گئے۔ اور اس وقت PDM کے مختلف ٹیمیں لسبیلا کے اورنگی، کاروان اور آس پاس کے علاقوں میں پیدل ریسکیو کر رہے ہیں۔ عطا اللہ صاحب، آپ نے بتایا کہ کن کن مقامات پر آپ کی ٹیموں نے ریسکیو کیا ہے، لوگوں کو کھانا پینا فراہم کیا ہے، لیکن ہمارے نمائندے دیدار علی بتا رہے ہیں صورتحال بہت زیادہ ورسٹ ہے۔ رابطہ پل بہہ چکے ہیں، لوگوں کے پاس ابھی بھی بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، رہائش کے لیے گھر نہیں ہے، درخت کی جو لکڑیاں ہیں اس پر وہ پناہ جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں کیونکہ بارش مسلسل ہو رہی ہے، سیلابی ریلا مسلسل نیچے سے بہہ رہا ہے۔ تو ان کے لیے کیا کیا گیا اب تک؟ دیکھیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو اتنے تقریباً 200 کے قریب بچے تھے، عورتیں تھے جو وائرل و مختلف ایریاز میں جو جھونپڑیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اس ایریا میں ابھی ریسکیو شروع ہے۔ اس ایریا میں ابھی تک 200 کے قریب عورتیں اور بچوں مردوں کو ریسکیو کیا اور مزید۔ عطا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں آپ نے ریسکیو آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے، وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر آپ کی ٹیمیں موجود ہیں اور وہ کون کون سے علاقے جہاں پر آپ کی ٹیمیں موجود ہو کے ریسکیو لوگوں کو کر چکی ہے، یہ بتائیے گا ذرا واضح طور پر۔ اس وقت ہماری ٹیمیں ارٹھی ایک ایریا ہے ادھر موجود ہے، اس کے علاوہ کاروان ایریا میں، اس ایریا میں ریسکیو کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے عطا اللہ مینگل صاحب، چونکہ بلوچستان اگر ہم پاکستان کے 4 صوبوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ پسماندہ بھی ہے، اور اس کے ضلع اگر قلات کی بات کر لیں تو وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں بڑی ہولناک ہے۔
बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, कच्चे मकानात तबाह हो गए हैं, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, दही इलाकों की कई सड़कें जो है वो बरसाती रैला जो है वो भाकर ले गया है। पंदरान की बात हो रही है, निचारा की बात करें, मोहम्मद तावा की बात करें और कपूतों की बात करें, वहां पर भी बड़े नुकसानात की इतलात आ रही हैं। तो उन इलाकों में रेस्क्यू सर्विस कब तक पहुंचेगी? जहाँ तक कलार डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, कल तो कलार डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा बड़ा डिजास्टर नहीं है, तो हम मुसलसल राब्ते में थे डिप्टी कमिश्नर से। जहाँ आज का ताल्लुक है तो हम लोगों ने कलार डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 700 फैमिलीज थे, फूड और नॉन फूड हम ऑलरेडी डीसी के पास रखवा दिए। यूए में डिस्ट्रिक्ट की तरफ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, डीडीएमए की तरफ से कोई कॉल मिलेगी और रेस्क्यू होगी तो फौरन हमारी टीम में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है अता साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे हब में जो मौजूद हैं दीदार, इनसे भी जानेंगे। दीदार, जैसा कि अताउल्लाह मेंगल कह रहे हैं कि उन्होंने काफी इलाकों के अंदर रेस्क्यू किया है, क्या ये हकीकत है? क्योंकि हम जो सिचुएशन देख रहे हैं वो इंतहाई खराब है। जी बिल्कुल, हमारे पास जो आमदा इतलात हैं कहीं भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ एक चंद इलाके हैं जहां पर ईदी के रजाकार वहां पर पहुंचे हैं, या लसपेला वेलफेयर ट्रस्ट जो कि यहाँ की मकामी तंजीम है उनके रजाकार वहां पर पहुंचे हैं और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया है। अगर हम बात करें कि आपसी इशारा पर भी इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर, जिनमें खवातीन और बच्चे हैं, वो फंसे हुए हैं। वो उनके पास न सिर्फ पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए कुछ है। होटल मालकान ने जो है रेट इंतहाई हाई कर दी है, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी ईदी के रजाकार उनको खाना पहुंचा रहे हैं, या वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपने घरों से खाना ला रहे हैं और उनको खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिले हुकूमत की जानिब से या सूबाई हुकूमत की जानिब से ताल किसी भी किस्म की उन तक भी इमदाद नहीं पहुंची। अभी तक लोगों तक इमदाद नहीं पहुंची है। और अताउल्लाह मेंगल साहब, आपको एक खास बात ये बताया, मुसलसल जो है वो जिला लसबेला की जो इंतजामिया है उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर से मुसलसल राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ताहाल वो हमारा फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, हमें सूरत हाल नहीं बता पा रहे हैं कि वहां पर क्या है और क्या जो है वो रेस्क्यू अभी तक काम हुए हैं। अब जरा ये बताइएगा अताउल्लाह मेंगल साहब, हम देख रहे हैं लोगों के पास अगर थोड़े बहुत लोगों तक ग़िज़ा पहुंची है तो रफाही इदारे हैं उन लोगों ने पहुंचाई है। पीडीएमए ने जो काम किया है वो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है, ना सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, ना अपनी स्क्रीन्स पर नजर आ रहा है। यकीनन अगर आप लोगों ने इमदादी कार्रवाइयां की हैं, बड़े पैमाने पर अगर की हैं, अगर आप लोगों का दावा है तो वो नजर क्यों नहीं आ रही, उनकी फुटेजेस क्यों नहीं है? देखे आप पीडीएमए का सोशल मीडिया देखे, ट्विटर देखे, वीडियोस देखे, जैसे मैंने पहले कहा था हम उत्तल से आगे नहीं गए, क्योंकि उत्तल से आगे हमारे अप्रोच नहीं है, सड़कें बंद है। उत्तल से उस तरफ विंदर और अब की तरफ ईदी वाले और नेवी वाले कर रहे हैं, जहाँ तक बेला के आसपास है ये पीडीएमए वाले कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो अता साहब ये बताइएगा, आप डायरेक्टर पीडीएमए हैं, तो ओथल से अगर आपकी आगे जो है वो रसाई नहीं है तो किस तरह लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा? कोई तो प्लान मुरतब किया होगा। क्योंकि इसमें मैंने जैसे बताया कि आज आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने आधा घंटे इस एरिया में कुछ जगहों पे फूड ड्रॉप किए, लेकिन हवा इतना तेज थी, बारिश तेज थी, तो मौसम ने स्विच नहीं किया, इसलिए वो हेलीकॉप्टर वापस आ गए। अच्छा, अब अताउल्लाह साहब ये बताइए, नुकसानात तो बेपनाह हो चुके हैं, अब ये बहाली का काम कितना टाइम लेगा? क्योंकि राब्ता पुल तो बह चुके हैं, लोग किस तरीके से फिर रेस्क्यू होंगे? देखिए सुबह हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है, बकायदा हमारे डायरेक्टर वहाँ पे बैठा है, मैं डायरेक्टर का नंबर भी आपके नुमाइंदे के साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि दोपहर तक थोड़ा पानी कम हुआ, लेकिन 3 बजे तो 4 बजे के बाद फिर पलट के रेले ज्यादा हो गए, तो यूं ही कोई अप्रोच होगा, रास्ता मिलेगा तो हम मूव करेंगे, क्योंकि आर्मी वाले भी हमारे साथ, आर्मी की 2 बटालियन भी हमारे साथ रेस्क्यू काम में खड़े और वो भी साथ मदद दे रहे हैं। तो अताउल्लाह साहब ये भी तो बताइए कि आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि रेला जो है वो बार बार पीछे से आ रहा है, अब फोरकास्ट तो ये है कि आने वाले 2-3 हफ्ते मजीद सख्त होंगे, मजीद बारिशें होंगी, तो लोग जो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं वो क्या करें? वो यही सोचें कि अभी 2-3 हफ्ते उनको इसी तरीके से बेयारो मददगार गुजारनी है जिंदगी? नहीं, इंशाल्लाह कल जो फोरकास्ट से कल थोड़ा मौसम ठीक होगा, तो इसमें आज जैसे हमने आली सर्विस किया कि जलमगसी में भी पूरे दिन हमारे सीएम ने अपने पर्सनल वजीर आला ने जो दिया था, हेलीकॉप्टर दिया था, तो जलमगसी में पूरे दिन फूड ड्रॉपिंग करते रहे हेलीकॉप्टर। तो कल प्रोग्राम में इंशाल्लाह मजीद 5 हेलीकॉप्टर लसबेला एरिया में लोगों को खुराक देंगे और रेस्क्यू करेंगे। दीदार, आपकी तरफ आते हैं, अताउल्लाह मेंगल साहब की गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी होगी, आपको क्या लगता है बलूचिस्तान हुकूमत की इंतजामी सलाहियत कम है या नुकसान बहुत ज्यादा है, इसी वजह से रेस्क्यू का काम नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से?
जी बिल्कुल, देखें ना, महकमे मौसमियात ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिए थे, लेकिन अभी जिले जो गवर्नमेंट इंतजामिया की या डिप्टी कमिश्नर लसबेला की जानब से या सूबाई हुकूमत की जानब से खातिर खवा किसी भी किस्म के ऐसे इंतजाम नहीं किए गए थे कि जो महकमा मौसमियात ने पेश गोई थी कि पहले से ही उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए। जब फ्लड आ गया, लोग फंस गए और पानी ज्यादा दाखिल हो गया और रास्ते बंद हो गए, इसके बाद इनको परेशानी लायक हो गई कि अब वहां तक किस तरह पहुंचा जाए। अभी जिले जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने आर्मी से राब्ते किए हुए हैं और हेलीकॉप्टर आ जाएंगे, लेकिन ताहाल किसी भी किस्म के हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचे हैं। जी ठीक है, दीदार आप हमारे साथ मौजूद है। अताउल्लाह मेंगल साहब, ये बताइएगा कि जिन इलाकों के अंदर आप लोगों की रसाई हासिल है वहां पर भी तो मुकम्मल रेस्क्यू लोगों को नहीं किया गया है, तो आप इस बात की यकीन दहाई करवाएंगे कि अब जिन इलाकों में आपकी रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच सकी हैं वो अब पहुंच जाएंगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इलाका है, क्योंकि इस वक्त जो रेस्क्यू हो रहे हैं उसमें हमारे बोट भी नाकाम हो गए, क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज्यादा, तो बड़े पत्थर के बोट भी आगे नहीं गए और 15 किलोमीटर आज हमारे रेस्क्यूअर पैदल गए इन बंदों को रेस्क्यू किए। तो रेस्क्यू कंटिन्यू, लेकिन इलाका बहुत बड़ा है। इस वक्त भी जो उर्की के एरिया है उसमें भी 15-30 किलोमीटर आगे कम से कम 150 बंदे फंसे हुए जो इमदाद के मुंतज़िर। चलिए ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। बलूचिस्तान के जिला कल्लात की भी ताज़ा तरीन सूरत हाल हम मालूम कर लेते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है वहां पर। आज न्यूज के नुमाइंदे कादिर शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कादिर शाह, कल्लात की क्या सूरत हाल है, क्योंकि इतलात बड़ी हौलनाक है, कच्चे मकानात मुकम्मल तबाह हो गए हैं, खड़ी फसलों को बेपनाह नुकसान पहुंचा है, कई सड़कें जो है वो बह चुकी हैं, क्या सूरत हाल है जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी अहम बना दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल्लात शहर और गिरदनवां में इन दौरान तकरीबन 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर हम बात करें दही इलाकों की, तो दही इलाकों में जिनमें 15, लीचारे, शेखड़ी, अमीरी में बारिश ने बिल्कुल तबाही मचा दी। कच्चे मकानात को शदीद और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि खैमों में बसने वाले शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। और इसके अलावा मवासलात का जो निज़ाम है वो बिल्कुल दरम बरम हो गया है। जुर के मकाम पर पानी की रेले में सड़क इसमें बह गई है, जिससे अमीरी, लैर, आदिरकश और दीगर इलाकों का राब्ता सड़क, जमीन राब्ता सड़क वो जो है मुनक़ता हो गया है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मेरुल आबादी की खुसूसी हिदायत पर इन इलाकों में मुतासिरीन को इमदादी सामान की तकसीम और सड़क की बहाली का काम जारी है। जी ठीक है, कादिर मुझे बताइएगा कि कितने इलाके हैं वहाँ के कल्लात के जो इस वक्त जहाँ पर इमदादी सामान नहीं पहुँच सका है, और कौन कौन से इलाके हैं जो बहुत ज्यादा मुतासर हैं? जी बिल्कुल, अगर बलूचिस्तान की आबादी को वैसे भी देखा जाए तो ये मुंतशिर है और बहुत बड़ा इलाका है, जहाँ पर अभी शोर का मकाम है, लैर आदिरकश है, जहाँ पर अगर हम मंगोचर की बात करें यहाँ पर भी दही इलाके बहुत दूर इलाके हैं, गज़ग है, शेखड़ी है, जहाँ पर अभी तक इमदादी सामान की रसाई और रेस्क्यू के एहलकारों की रसाई नामुमकिन है। चलिए ठीक है, दीदार अब जरा आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा जानी नुकसान की क्या इतलात आ रही हैं? जी, जो मानसून की जो बारिशें शुरू हुई तो अब तक जो जानी नुकसान की इतलात हैं वो जो है तकरीबन 5 अफराद उसमें जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून भी शामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दीदार अली हफ्से हमारे साथ मौजूद थे, कादिर शाह कल्लात से रिपोर्ट कर रहे थे, और अताउल्लाह मेंगल हमारे साथ मौजूद थे। आप तीन लोगों का बहुत शुक्रिया।